Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिजनेसमैन एलन मस्क के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती अब खुलकर दुश्मनी में बदल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति और मस्क एक दूसरे को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। दरअसल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मस्क ने ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रंप के समर्थन में जबरदस्त कैंपेन चलाया था और कई मौकों पर सार्वजनिक रैलियों में शिरकत भी की थी। हालांकि मस्क को इसका इनाम भी मिला और उन्हें डॉज का प्रभार सौंप दिया गया, लेकिन फिर आया ट्रंप का महत्वाकांक्षी वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसे जोर शोर से पारित किया गया। मस्क ने पहली दबी जुबान में इसका विरोध किया और बात नहीं बनने पर खुलकर इसके विरोध में खड़े हो गए। इस बिल का मस्क की ओर से विरोध किए जाने की वजह सामने आई कि इस बिल में इलेक्ट्रिक वाहन के टैक्स क्रेडिट को खत्म कर दिया गया, जिससे मस्क के टेस्ला की बिक्री पर सीधे सीधे असर पड़ता है। और इसी वजह से मस्क ने इस बिल को विध्वंसक बताते हुए ट्रंप पर रातों रात इसे पारित करने का आरोप लगा दिया। हालांकि इन सब बवाल के बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने मस्क पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मस्क बिल के हर हिस्से से वाकिफ थे, लेकिन जब ईवी सब्सिडी को हटाया गया तभी उन्हें दिक्कत होने लगी। The criticism that I've seen, and I'm sure you've seen, regarding Elon Musk and your big, beautiful bill, what's your reaction to that? Do you think it in any way hurts passage in the Senate, which of course what is you're seeking? Well, look, I've always liked Elon, and it's always very surprised. You saw the words he had for me, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill, because the bill is incredible. And, Elon's upset because we took the EV mandate, and, which was a lot of money for electric vehicles. And, they're having a hard time, the electric vehicles. And they want us to pay billions of dollars in subsidy. And, Elon knew this from the beginning. He knew it for a long time ago. That's been in there. That's been, I would say, JD, that hasn't changed. That's been right from the beginning, Mr. Secretary, that hasn't changed at all, right from the beginning. But I know that disturbed him. He wanted, and rightfully, he recommended somebody from that he, I guess, knew very well. I'm sure he respected him, but to run NASA, and I didn't think it was appropriate. And he happened to be a Democrat, like totally Democrat. And I say, look, we won. We get certain privileges, and one of the privileges, we don't have to appoint a Democrat. But he wanted that person, a certain person, and we said no. And I can understand why he's upset. Remember, he was here for a long time. You saw a man who was very happy when he stood behind the Oval desk, and even with the black eye, I said, "You want a little makeup? We'll get you a little makeup." But he said, "No, I don't think so," which is interesting and very nice. He wants to be who he is, so you could make that statement too, I guess. Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best things. He's worn the hat. Trump was right about everything. And I am right about the great, big, beautiful bill. We call it a great, big, beautiful bill because that's what it is. Elon endorsed me very strongly. He actually went up and campaigned for me. I think I would have won. Susie would say I would have won Pennsylvania easily anyway. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. And it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have we want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, he became a little bit different. And I can understand that. But he knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody. And he never had a problem until
right after he left. And if you saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape. He said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. ट्रंप ने मस्क पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं कि मस्क मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्हें ये महीनों पहले कर देना चाहिए था। ये संसद में पेश किया गया अब तक का सबसे बेहतरीन बिल है। इससे सरकार का भारी भरकम खर्चा बचेगा और टैक्स में अब तक की सबसे बड़ी कटौती होगी। और अगर ये बिल पारित नहीं होता तो टैक्स में 68% बढ़ोतरी होती। वहीं ट्रंप के इस बयान के बाद एलोन मस्क ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने ट्रंप के दावों को झूठा करार दिया। एलोन मस्क ने लिखा, ये सब झूठ है। ये बिल मुझे एक बार भी नहीं दिखाया गया था। इतना साफ झूठ बेहद दुखद है। अब वक्त आ गया है बड़ा खुलासा करने का। ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है। दरअसल यहाँ पर एलोन मस्क ने ट्रंप को सीधी धमकी दी है। एप्स्टीन फाइल एक अमीर कारोबारी से जुड़ा है जिस पर 2019 में यौन तस्करी और नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। इसी साल एप्स्टीन विवाद से जुड़ी कुछ फाइलों को सार्वजनिक किया गया जिनमें कई जानकारी और हाई प्रोफाइल संपर्क के बारे में पता चला। और अब एलोन मस्क ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में बता रहे हैं जो कहीं न कहीं इस बवाल को और बढ़ाता है। ट्रंप और मस्क अब खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। ट्रंप ने सिलसिलेवार पोस्ट कर मस्क पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारे बजट की एक भारी भरकम धनराशि खर्च करने से बचाने का आसान तरीका है कि मस्क की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए। मुझे हैरानी है कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। दरअसल ट्रंप की धमकी के बाद मस्क की कंपनियां जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स को बड़ा झटका लग सकता है। इस पर भी मस्क चुप नहीं बैठे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मेरे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के राष्ट्रपति के बयान के मद्देनजर स्पेसएक्स जल्द ही अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की डीकमिशनिंग शुरू कर देगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि मस्क मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है क्योंकि मैंने उन्हें डोज छोड़ने को कहा था। मैंने इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट खत्म कर दिया जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने को मजबूर हो रहे थे। इस वजह से मस्क क्रेजी हो गया है। इसका भी जवाब देते हुए एलोन मस्क ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से इस साल की दूसरी छमाही में मंदी आ सकती है। दरअसल आपको बता दें, ट्रंप सरकार के इस बिल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म करने का प्रस्ताव है। बाइडेन सरकार नई ईवी खरीदने पर $7500 की टैक्स छूट देती थी। हालांकि ट्रंप इसे खत्म करने जा रहे हैं। इस बिल में प्रावधान है जो कंपनियां 2009 से 2025 के बीच 2 लाख ईवी बेच चुके हैं उन्हें छूट नहीं मिलेगी। ये सीधे तौर पर एलोन मस्क की टेस्ला के लिए झटका है। इसके अलावा जैसा कि ट्रंप ने बताया कि नासा में एलोन मस्क अपने भरोसेमंद साथी को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त करवाना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने उनकी सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया। मस्क का मानना था कि अगर उनका व्यक्ति नासा में एडमिनिस्ट्रेटर बनता है तो इससे उनकी कंपनी स्पेसएक्स को भी फायदा होगा। इसके अलावा ट्रंप ने मस्क को डॉज की जिम्मेदारी सौंपी थी जिसका काम सरकारी खर्च में कटौती करना था। ट्रंप ने उन्हें एक तरह से बेकार और फालतू खर्च कम करने को कहा था। इसके लिए डॉज ने हजारों लाखों सरकारी कर्मचारियों की छटनी की। इसने एलन मस्क की छवि को नुकसान पहुंचाया। ज्यादातर लोगों का मानना था कि मस्क अपनी मर्जी से लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये टकराव सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रहा है, अब ये सत्ता और अहंकार की लड़ाई में बदल चुका है। इस बवाल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।